तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम नाइडेरिया, also called Coelenterata. नेक्स्ट फाइलम है फाइलम नाइडेरिया Coelenterata. फाइलम Coelenterata के जो मेंबर्स होते हैं उनका हैबिट, दे आर एक्वेटिक. दे आर एक्वेटिक एंड दे आर मोस्टली मैराइन एंड फ्यू फाउंड इन फ्रेश वाटर लाइक हाइड्रा. और कुछ कहाँ मिलते हैं फ्रेश वाटर में, जैसे कि हाइड्रा. दे आर कार्निवोरस. दे आर सेसाइल. द मीनिंग ऑफ सेसाइल इज दे आर फिक्स्ड विद अ सबस्ट्रेटम. ये फिक्स होते हैं, लोकोमोशन एब्सेंट होता है. ये टर्म आपने स्पॉन्जेस में भी देखा था. सो दे आर सेसाइल एंड दे मे बी free swimming also. Means few members are sessile, few members are free swimming, like Adentia, sea pen. These members are sessile. Jellyfish, ये free swimming member है. Next point, symmetry. A phylum Coelenterata is radial. So they are radially symmetric animal. इनमें symmetry होती है radial. Radial symmetry का मतलब animal can be divided into two equal parts through any plane. लाइक हम इस एनिमल को इस प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, देन वी गेट टू इक्वल पार्ट. इस प्लेन से डिवाइड किया, टू इक्वल पार्ट. हम इस प्लेन से डिवाइड करते इस तरह से, हमें तब भी टू इक्वल पार्ट्स मिलते. हम इस प्लेन से करते, हमें तब भी टू इक्वल पार्ट्स मिलते. देन सच टाइप ऑफ सिमेट्री इज नोन एज रेडियल सिमेट्री. द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू लेवल एंड germ layers, then they are diploblastic animals, means ectoderm and endoderm present, mesoderm absent. ectoderm और endoderm के बीच में जेली लाइक जेलेटिनस लेयर मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है. हमने यहां एक एनिमल लिया हाइड्रा. हाइड्रा में दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट, माउथ. माउथ के ठीक नीचे का स्वेलन पार्ट नोन एज हाइपोस्टोम. माउथ के ठीक नीचे ये फूला हुआ पार्ट जो है, इट इज नोन एज हाइपोस्टोम. हाइपो बिलो, स्टोमा माउथ, बिलो माउथ, स्वेलन स्ट्रक्चर नोन एज हाइपोस्टोम. माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटाकल्स एंड now next हमने क्या किया, we cut this animal longitudinal section कर दिया. then we get this animal is hollow and the cavity is known as gastrovascular cavity. The other name of this cavity is coelentron, as the phylum name is Coelenterata and the cavity is coelentron. So the cavity is coelentron, also called gastrovascular cavity. Now come to the body wall. In body wall, the outer layer is epidermis. So this is epidermis. And inner layer is gastrodermis. In between these two layers, jelly-like gelatinous layer mesoglia present. So body wall में outer layer is epidermis, inner layer is gastrodermis, and the middle layer is mesoglia. Now, interstitial cells. The cells are found in epidermis layer and also gastrodermis layer. These cells are present in epidermis as well as in gastrodermis layer. These cells are totipotent cell. Totipotent cell होती है. The meaning of totipotent cell is that they can form any other cell of this animal. ये totipotent term आपने पोरीफेरा में पढ़ा था. पोरीफेरा में totipotent cell का नाम था archaeocyte. यहाँ पर totipotent cell का नाम क्या है, interstitial cell. Interstitial cell, they are totipotent cell, they can form any other cell of hydra. They are undifferentiated cells. Now next, gastrovascular cavity. Mouth, here this is mouth, tentacle, and mouth open behind into the cavity, and this cavity is what? This cavity is gastrovascular cavity. इस cavity को हम क्या बोलते हैं? This cavity is known as gastrovascular cavity. एक और भी नाम मैंने बताया था, coelentron. Why this is called gastrovascular cavity? It is called gastrovascular cavity due to its dual function. What? Gastro. The gastro term stand for digestion. Food जो है, food enter into this cavity and digestion takes place in this cavity. That's why the term is gastro and vascular. Now digestion यहाँ पर हुआ इस food का. Now this partially digested food is distributed into the cell. So the other function of this cavity is the distribution or circulation. That's why named vascular. तो इसका नाम gastrovascular इसलिए रखा because digestion भी होता है इस cavity में, and also distribution. That's why called gastrovascular cavity. Next point is digestive system is, बताइए आप complete type होगा या incomplete type. Then digestive system is incomplete type. Why? Because only mouth तो present है, but anus is not there.
Mouth is present, only one opening is there, then the digestive system is incomplete type. You can say the body plan is what? Body plan is blind sac. Body plan is blind sac. Now, body plan is blind sac, digestive system is incomplete type. And the function of the gastrovascular cavity is digestion and the distribution of substances. Now the next feature is presence of nidocyte और nidoblast, है ना? तो नेक्स्ट फीचर हम लेते हैं अब निडोसाइट और निडोब्लास्ट। कैरेक्टरिस्टिक सेल होती है, फाउंड ओनली इन फाइलम सीलेंट्रेटा। इसी सेल का एक नाम तो आपने क्या देखा, निडोब्लास्ट, ऑल्सो कॉल्ड निडोसाइट। और भी नाम है, आप वो भी जानिए, निमैटोब्लास्ट, निमैटोसाइट और स्टिंगिंग सेल। और भी नाम क्या है, निमैटोब्लास्ट, निमैटोसाइट और स्टिंगिंग सेल। स्टिंगिंग सेल, है ना? स्टिंगिंग सेल की जो प्रेजेंस है, इसी के बेसिस पर नाम दिया गया है नाइडेरिया, फाइलम नाइडेरिया। जो नाइडेरिया नाम है वो कहां से डिराइव है, तो वो डिराइव हुआ है कहां से, निडोब्लास्ट से या निडोसाइट से, स्टिंगिंग सेल से। ये सेल जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक सेल होती है। कहां मिलती है, तो ये मिलती है बॉडी की सरफेस पर, आउटर लेयर, दैट आउटर लेयर इज व्हाट, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में मिलती है। और कहां मिलेंगी, इन एपिडर्मिस। इनके नंबर जो होते हैं मोर इन, ज्यादा कहां होंगे, मोर इन टेंटाकिल्स। इनके नंबर ज्यादा कहां होते हैं, तो टेंटाकिल्स में। एक सेल का स्ट्रक्चर देते हैं, नीडोसाइट का स्ट्रक्चर। दिस नीडोसाइट कंसिस्ट ऑफ अ कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिंगिंग कैप्सूल। स्टिंगिंग कैप्सूल। This stinging capsule is filled with a toxic chemical. This stinging capsule is filled with toxic chemical, and other name of this stinging capsule is nematocyst. हम इस स्टिंगिंग कैप्सूल को निमेटोसिस्ट भी बोलते हैं। फिल्ड विद टॉक्सिक केमिकल, इसके अंदर क्या होगा, टॉक्सिक केमिकल भरा है। दिस निमेटोसिस्ट और स्टिंगिंग कैप्सूल इज सपोर्टेड बाय सपोर्टिंग फाइब्रिल्स। इनको कौन सपोर्ट कर रहा है, सपोर्टिंग फाइब्रिल। न्यूक्लियस ऑफ द सेल, there is a coiled thread known as lasso which connect this nematocyst with this cell membrane. Cell membrane और nematocyst को कनेक्ट करता है this coil like structure called lasso. This is a thread or flagellum on which spines are present. ये तो स्ट्रक्चर की बात। ये जो सेल होती है, अच्छा, ये जो सेल होती है, ये सेल नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में सेल का ये जो थ्रेड या फ्लैजिलम है, ये कॉइल्ड होकर पड़ा रहता है किसमें, निमेटोसिस्ट में। और ये निमेटोसिस्ट कवर अप रहती है किससे, ऑपरकुलम या लिड से, ऊपर ये लिड लगा होता है। ऐसी बहुत सारी सेल्स होती हैं, वो एपिडर्मिस में या टेंटाकिल्स में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं। जैसे ही कोई फूड या प्रे पास आता है ना, जैसे ही कोई फूड या प्रे पास आता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन को, उसके सेंस को रिसीव करने के लिए देयर इज नीडोसिल। कैसे काम करता है ये, रिसेप्टर की तरह काम करता है। कोई प्रे जैसी पास आया, इसने इंफॉर्मेशन उसकी रिसीव की, सेंस रिसीव किया, देन आफ्टर जो ये नेमेटोसिस्ट ऑपरकुलम से बंद है, वो ऑपरकुलम खुला और इस नेमेटोसिस्ट के अंदर पड़ा हुआ थ्रेड ये तेजी से बाहर निकला। ये थ्रेड तेजी से बाहर निकला तो कहीं ऐसा ना हो कि थ्रेड तो बाहर जा रहा है, पूरी की पूरी नेमेटोसिस्ट ही ना चली जाए, ऐसा ना हो, इसके लिए लासो, लासो होल्ड दिस नेमेटोसिस्ट, है ना। अच्छा, ये जो थ्रेड है इस पर क्या प्रेजेंट है, स्पाइंस। उस प्रे के चारों ओर ये थ्रेड लिपट गया, स्पाइन से वो प्रे इंसर्ट हो गया। देन आफ्टर टॉक्सिक केमिकल इंजेक्टेड इनटू द प्रे, वो प्रे अनकॉन्शियस हो गया। टेंटाकिल की हेल्प से उस प्रे को माउथ के अंदर डाल दिया। तो इस सेल का फंक्शन क्या हुआ, इस सेल का फंक्शन ये हुआ कि ये सेल जो होती है हेल्प कर रही है किसमें, कैप्चर ऑफ प्रे। कैप्चर ऑफ प्रे, जो प्रे है उसको कैप्चर करने में। और दूसरा फंक्शन कि अगर ये एनिमल कहीं स्विम करते हुए जा रहे हैं या फ्लोट करते हुए जा रहे हैं, इनको कहीं रुकना है, किसी जगह पर फिक्स होना है, तो ये सेल से थ्रेड निकले और उस सरफेस पर चिपक गई, तो ये एनिमल भी वहां चिपका रह जाएगा। तो नेक्स्ट फंक्शन इज व्हाट, एंकरेज। तो अगला फंक्शन क्या हो गया, एंकरेज, मतलब अपने आप को फिक्स करना। नेक्स्ट फंक्शन इज ऑफेंस एंड डिफेंस, अटैक करने में और अपना बचाव करने में ये सेल हेल्प करती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डाइजेशन इन सीलेंट्रेट। हमने एनिमल लिया हुआ है कौन सा, हाइड्रा। तो सबसे पहले तो हियर इट इज माउथ। ये क्या प्रेजेंट है यहां, तो माउथ प्रेजेंट है। माउथ के ठीक नीचे का स्वेलन पार्ट या फूला हुआ पार्ट जो होता है, बोलिए क्या कहलाता है, हाइपोस्टोम। माउथ के ठीक नीचे का फूला हुआ पार्ट हाइपोस्टोम।
surrounded by tentacle, and the cavity of animal is known as what? Gastrovascular cavity. एक और भी नाम मैंने बताया था, क्या और कहते हैं? सीलेक्ट्रॉन. अच्छा, अब देखिए टेंटाकिल पर जो नीडोसाइट्स इनके नंबर बहुत ज्यादा है. इनके नंबर बहुत ज्यादा है. जैसे ही कोई फूड पास आया तो टेंटाकिल पर प्रेजेंट नीडोसाइट, ये टेंटाकिल पर प्रेजेंट नीडोसाइट है. इससे क्या हुआ? थ्रेड बहुत तेजी से बाहर निकला और इस फूड के चारों ओर लिपट गया. तो क्या हुआ कि अब ये फूड इस टेंटाकिल पर चिपका रह गया, है ना. किसने हेल्प की? तो हेल्प की है इस नीडोसाइट ने. फंक्शन ऑफ नीडोसाइट इज टू कैप्चर ऑफ प्रे. एंड देन आफ्टर दिस फूड इज ट्रांसफर्ड इनटू दिस कैविटी थ्रू माउथ. फिर क्या किया कि उस फूड को कहां छोड़ दिया? कैविटी में. कैविटी का नाम क्या बताया था? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में. यहां पर ये फूड आ गया. नाउ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सीक्रेटेड ऑन दिस फूड. इस पर क्या छोड़ दिए हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ दिए. डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ दिए तो फूड का डाइजेशन होगा. डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस outside the cell in the cavity. That's why this is known as extracellular digestion. डाइजेशन सेल से बाहर हो रहा है. कहां हो रहा है? कैविटी में हो रहा है. वैसे डाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, है ना. एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहां पर हुआ? सीलेट्रॉन में या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में. देन आफ्टर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड. नाउ जब ये डाइजेशन हो गया तो फूड कैसा हो गया? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड. दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द सेल. ये कहां आ गया? देखो इनसाइड द सेल, सेल के अंदर आ गया. अब सेल के अंदर भी डाइजेशन होगा. देन डाइजेशन विल बी व्हाट? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. तो अब ऐसे डाइजेशन को क्या बोलेंगे? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. अच्छा, तो बताइए डाइजेशन जो हाइड्रा में होता है वो कैसा होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया एक्स्ट्रा सेल्युलर, सेकंड दे दिया इंट्रासेल्युलर, है ना, थर्ड दे दिया बोथ. तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ. उसमें भी क्या याद रखेंगे? फर्स्ट एक्स्ट्रा, पहले कैसा हुआ? एक्स्ट्रा सेल्युलर एंड देन इंट्रासेल्युलर, फिर कैसा हो जाएगा? इंट्रासेल्युलर इनसाइड द सेल. नाउ सारा का सारा फूड तो डाइजेस्ट होगा नहीं. नाउ अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए एनएस होनी चाहिए. वो यहां होती नहीं है. व्हाई? बिकॉज ब्लाइंड सेल बॉडी प्लेन प्रेजेंट है. नाउ दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज एलिमिनेटेड थ्रू माउथ. ये माउथ से होता हुआ अनडाइजेस्टेड फूड कहां जाएगा? बाहर. बिकॉज एनएस इज एब्सेंट. सम पार्ट ऑफ दिस फूड मे ऑल्सो डिफ्यूज आउट थ्रू बॉडी वॉल, है ना. बट मेनली याद रखना, मेनली थ्रू माउथ. तो अनडाइजेस्टेड फूड इज एलिमिनेटेड थ्रू माउथ. अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए, माउथ भी है एंड बॉडी वॉल भी है, एंड देन गो फॉर बोथ. आगे बात करते हैं अब अगली, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए यहां पर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है. रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कैसे होगा? बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस. यहीं से बॉडी सरफेस से ही ऑक्सीजन अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डिफ्यूज आउट हो रही है. सो रेस्पिरेशन थ्रू बॉडी सरफेस. Excretion also taking place through this body surface, and the excretory waste is what? Ammonia. Excretory waste क्या हो जाएगा? अमोनिया. नर्वस सिस्टम जो होता है इनका बहुत लेस डेवलप टाइप का है. किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट, है ना. नर्व नेट किस तरह से? ये सेल्स जो हैं, ये नर्व सेल्स हैं, ये सब क्या बना रही हैं? ये बना रही है नर्व नेट, है ना. सो ये क्या बन रहा है? नर्व नेट. ये बन रहा है नर्व नेट. इनमें जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स होती है, वो कैसी होती है? नॉन पोलर. नॉन पोलर का मतलब ये होता है कि इनमें जो न्यूरॉन की प्रोसेस है, दिस प्रोसेस आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स. मींस इनमें डेंड्राइट और एक्सॉन्स नहीं होते हैं, है ना. तो ऐसी नर्व सेल क्या हो गई? नॉन पोलर टाइप की. कुछ सीलेंट्रेट जो होते हैं वो अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन सीक्रेट करते हैं. अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन बनाते हैं. ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं? कोरल्स, है ना. ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं? कोरल्स. अच्छा, ये आपने देखे हो सकते हैं कहां पर? कोरल रीफ आपने एक नाम सुना हो सकता है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, है ना. क्या हुआ कि एनिमल ने अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन बनाया. आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन वहीं रह गया. क्या बन गया? वो कोरल रीफ. बहुत सारे एग्जांपल है कोरल रीफ के, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान निकोबार, हवाईयन आइलैंड एक्सेट्रा. तो इन मेंबर्स को क्या बोलते हैं? कोरल सेंसिटी की लाइन है कि कुछ मेंबर्स अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, जैसे कोरल्स. एग्जांपल हो गए इनके, जैसे एक हो गया मशरूम कोरल. नेक्स्ट वन इज ब्रेन कोरल. मियंड्राइना है इसका साइंटिफिक नेम. ब्रेन कोरल क्यों कहते हैं? देखो ब्रेन की तरह दिख रहा है, दैट्स व्हाई कॉल्ड ब्रेन कोरल, है ना. अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑर्गन पाइप कोरल. ऑर्गन पाइप कोरल आल्सो कॉल्ड ट्यूबिपोरा. अब बच्चों बात करते हैं फाइलम सीलेंट्रेटा में एक और फीचर है, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब मोर देन वन फॉर्म, है ना. इफ टू फॉर्म्स आर प्रेजेंट, टू बेसिक फॉर्म्स आर प्रेजेंट, तो हम उसको बोलते हैं डाइमॉर्फिक. ये टू बेसिक फॉर्म्स कौन सी हैं? वन इज पॉलिप, अदर वन इज मेड्यूसा. पॉलिप फॉर्म जो होती है वो फॉर्म होती है सिलिंड्रिकल एंड सेसाइल. मतलब बोलिए सेसाइल का क्या होता है? फिक्स्ड. जबकि मेड्यूसा फॉर्म जो होती है वो कैसी है? अम्ब्रेला शेप्ड, फ्री स्विमिंग होती है. पॉलिप फॉर्म जो होती है ये सॉलिटरी और कॉलोनियल हो सकती है
है ना, सॉलिटरी हो सकती है और कॉलोनियल हो सकती है, बट बी रिमेंबर जो मेड्यूसा फॉर्म होती है ये हमेशा कैसी होगी, ऑलवेज सॉलिटरी। बोलिए सॉलिटरी का मतलब क्या, सिंगल, कॉलोनियल का मतलब क्या, ग्रुप में, कॉलोनी है। इसमें माउथ और टेंटाकल्स, दिस इज माउथ, टेंटाकल अपवर्डेड, ऊपर की ओर है। यहां पर माउथ एंड टेंटाकल्स डाउनवर्डेड, दिस इज व्हाट, दिस इज माउथ, टेंटाकल्स डाउनवर्डेड। ये फॉर्म जो होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, जबकि मेड्यूसा फॉर्म जो होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है ना। पॉलिप फॉर्म जैसे हमें किसमें देखने को मिल रही है, एडेमशिया में, और किसमें देखने को मिल रही है, हाइड्रा में, है ना। मेड्यूसा फॉर्म ये हमें किसमें देखने को मिल रही है, तो ऑरिलिया में, जेली फिश में। फाइलम सीलेंट्रेटा के कुछ मेंबर्स में पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म, है ना, हम पॉलिप और मेड्यूसा जॉइड भी बोल सकते हैं, फॉर्म की जगह हम जॉइड टर्म यूज कर सकते हैं। तो पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म्स का अल्टरनेशन होता है, दिस अल्टरनेशन इज नोन एज मेटाजेनेसिस। इस अल्टरनेशन को हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं मेटाजेनेसिस। होता क्या है इसमें, इसमें जो पॉलिप फॉर्म है, कौन, पॉलिप फॉर्म, पॉलिप फॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बनाता है मेड्यूसा, और मेड्यूसा फॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप बनाता है। तो आपको याद रखना है कि पॉलिप एसेक्सुअली मेड्यूसा बनाता है, मेड्यूसा सेक्सुअली पॉलिप बनाता है। तो पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप का बनना ही कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्सो कॉल्ड मेटाजेनेसिस। ये जो मेटाजेनेसिस है कुछ सीलेंट्रेट्स में प्रेजेंट होती है, ये उनमें प्रेजेंट होती है जिनमें एक से ज्यादा फॉर्म्स होती है, एक से ज्यादा फॉर्म्स होती है, उनमें अल्टरनेशन होता है। जैसे ओबेलिया, इसमें पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म प्रेजेंट है, तो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा, इसमें मेटाजेनेसिस होती है। फाइसेलिया, फाइसेलिया ये तो पॉलीमॉर्फिक है, पॉलीमॉर्फिक है तो मतलब इसमें तो बहुत ज्यादा फॉर्म्स है, तो इसमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस प्रेजेंट है। मेटाजेनेसिस इज एब्सेंट इन हाइड्रा, एडेमशिया एंड ऑरिलिया। मेटाजेनेसिस जो है वो हाइड्रा में, एडेमशिया में और ऑरिलिया में एब्सेंट होती है। क्यों एब्सेंट होती है ये भी जानना चाहिए, क्योंकि इनमें केवल एक ही फॉर्म प्रेजेंट है। अब अगर एक ही फॉर्म है तो अल्टरनेशन कैसे हो सकता है, अल्टरनेशन तो कम से कम दो फॉर्म के बीच में होगा। यहां पर केवल एक ही फॉर्म प्रेजेंट है, हाइड्रा और एडेमशिया, इनमें केवल प्रेजेंट है पॉलिप फॉर्म, ओनली पॉलिप इज देयर, मेड्यूसा है ही नहीं, तो अब एक ही फॉर्म है तो फिर अल्टरनेशन कैसे होगा। ऑरिलिया, इसमें प्रेजेंट है ओनली मेड्यूसा फॉर्म, ओनली मेड्यूसा फॉर्म प्रेजेंट है, एक ही फॉर्म है, ओनली सिंगल फॉर्म इज देयर, तो फिर अल्टरनेशन एब्सेंट होता है। आपको याद रखना है कि हाइड्रा, एडेमशिया इनमें ओनली पॉलिप फॉर्म है, इसलिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है। ऑरिलिया मेड्यूसा फॉर्म है, इसलिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एब्सेंट है इन एनिमल्स में। सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट कहां है, ओबेलिया में, और किसमें प्रेजेंट है, फाइसीलिया में। रिप्रोडक्शन इन सीलेंट्रेट्स, रिप्रोडक्शन जो होता है सीलेंट्रेट्स में वो एसेक्सुअल मेथड से है एंड ऑल्सो सेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाय बडिंग, बडिंग फॉर्मेशन से न्यू इंडिविजुअल बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाय गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट्स बनते हैं मेल एंड फीमेल गैमीट्स एंड देन फ्यूजन, जाइगोट, और फिर उससे एक नया इंडिविजुअल बनता है। यहां ओबेलिया को लिया है, दिस इज कॉलोनी ऑफ ओबेलिया, ये ओबेलिया है। ओबेलिया में ये फॉर्म जो होती है सेसाइल फॉर्म, हम उसे क्या बोलते हैं, पॉलिप। याद रखेंगे आप कि सेसाइल फॉर्म कौन सी होती है, पॉलिप। ये जो पॉलिप है, ये जो पॉलिप है, पॉलिप एसेक्सुअली बनाता है क्या, मेड्यूसा। तो यहां ये मेड्यूसा इसके अंदर बन रही है, मेड्यूसा इसके अंदर बन रही है, तो पॉलिप एसेक्सुअली फॉर्म करता है मेड्यूसा। ये मेड्यूसा यहां पर बन चुकी है, ये मेड्यूसा बन चुकी है। सो पॉलिप ने क्या किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा बनाया। अब मेड्यूसा जो है वो कैसे रिप्रोडक्शन करेंगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेड्यूसा में होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें गॉनेट्स प्रेजेंट हैं, इनमें एग या ओवा बनते हैं, इनमें स्पर्म्स बनते हैं, एग और स्पर्म्स का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट जो है इसमें डिवीजन होगा और उससे बनेगा क्या, लार्वा। लार्वा का नाम है प्लेन्यूला लार्वा। ये प्लेन्यूला लार्वा जो होता है वो ओबेलिया का है। अगर आप ऑरिलिया की बात करोगे तो वहां पर भी लार्वल स्टेज है और उसका नाम होता है इफाइरा, वहां पर लार्वा है इफाइरा। ओबेलिया में लार्वा का नाम है प्लेन्यूला लार्वा। ये लार्वा जो होता है किसी सबस्ट्रेटम पर चिपक गया, फिक्स हो गया, और ये डेवलप होता है किसमें, पॉलिप में, और ये पॉलिप से फिर क्या बन जाएगी, पूरी पॉलिप की कॉलोनी। तो पॉलिप एसेक्सुअली मेड्यूसा, मेड्यूसा सेक्सुअली पॉलिप बनाता है। सो हियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिख रहा है, मेटाजेनेसिस यहां प्रेजेंट है। एग्जांपल्स ऑफ सीलेंट्रेट्स देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल हाइड्रा, बोलिए क्या याद आ रहा है इसके बारे में, हाइड्रा जो होता है वो फ्रेश वाटर है। ओबेलिया इट इज आल्सो कॉल्ड सी फर, ओबेलिया मेटाजेनेसिस प्रेजेंट है इसमें, पॉलिप फॉर्म और मेड्यूसा फॉर्म प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है पेनिनसुला, आल्सो कॉल्ड सी पेन। नेक्स्ट एग्जांपल लिया फाइसेलिया, फाइसेलिया इट इज आल्सो नोन एज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ये कॉलोनियल है, ये पॉलीमॉर्फिक है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब ये हुआ कि इसमें कई सारी फॉर्म्स प्रेजेंट होती है ना, वो फॉर्म्स साथ साथ रहती हैं, इसका मतलब ये कॉलोनियल भी है। नेक्स्ट एग्जांपल इज गोर्गोनिया, आल्सो कॉल्ड सी फेन। नेक्स्ट एग्जांपल मिएंड्राइना, ब्रेन कोरल, brain like appearance hence called brain coral. Next adamsia,
also called sea anemone. Adamsia sea anemone. Aurelia. Aurelia it is also called jellyfish. Now the next phylum is phylum Ctenophora. अगला phylum देखते हैं phylum Ctenophora. Phylum Ctenophora जो है इसके members they are known for their beauty and delicate nature. काफी ब्यूटीफुल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. इन सनलाइट में इनमें प्रेजेंट होती है कॉम्ब प्लेट्स. ये कॉम्ब प्लेट्स हैं, ये कॉम्ब प्लेट्स. सनलाइट जब इस पर पड़ती है तो ये रेनबो इफेक्ट देती है. दे एमिट लाइट, दे शो बायोल्यूमिनेसेंस. ये बायोल्यूमिनेसेंस दिखाती हैं. इन एनिमल्स को सी गूसबेरी, कॉम्ब जेलीज और सी वॉलनट के नाम से भी जाना जाता है. सी गूसबेरी, कॉम्ब जेली, सी वॉलनट, इन नामों से भी इनको जाना जाता है. बॉडी शेप इनका हो सकता है स्फेरिकल, गोल हो सकते हैं, सिलिंड्रिकल हो सकते हैं, और दे मे बी पेयर शेप्ड. नाउ इनकी बात करें हैबिट की, तो ये एनिमल्स होते हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन. और ये बात आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए. इट मींस दे ओनली फाउंड इन सी वाटर. फ्रेश वाटर में इनके मेंबर्स नहीं होते. इससे पहले जो हम लोगों ने फाइलम पढ़े थे लाइक पोरिफेरा, सीलन टेटा, वो एक्सक्लूसिवली मैरीन नहीं थी. मतलब उसमें क्या था कि मोस्टली मैरीन एंड फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर. यहां आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, ओनली इन सी वाटर. दे आर पेलाजिक. पेलाजिक मींस दे फ्लोट ऑन सी सरफेस. ये सरफेस पर मिलते हैं, डीप नहीं होते हैं. सिमेट्री जो होती है इन एनिमल्स में प्रेजेंट है रेडियल सिमेट्री. इन एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है. टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऐसा सीलन टेटा में भी था. एनिमल्स आर डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक का मतलब जर्म लेयर जो होती है दे आर टू. कौन कौन सी? वन इज एक्टोडर्म एंड अदर वन इज एंडोडर्म. तो जर्म लेयर टू है. In between these two germ layer there is jelly-like undifferentiated layer which is known as what? इसे क्या बोलते हैं? मेसोग्लिया. ऐसा ही बिल्कुल प्रेजेंट था फाइलम सीलेंट्रेटा में. ये एनिमल्स जो होते हैं इनमें लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट होते हैं सीलियरी कॉम्ब प्लेट. इनमें लोकोमोशन के लिए क्या प्रेजेंट है? सीलियरी कॉम्ब प्लेट. ये एनिमल है, इसमें ये प्रेजेंट है सीलियरी कॉम्ब प्लेट. इनके नंबर्स भी आपको अच्छे से याद रखने चाहिए. कितने होती हैं? आप याद रखोगे 8. 8 कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट हैं. इन कॉम्ब प्लेट्स में क्या प्रेजेंट है? सीलिया प्रेजेंट है. इनका फंक्शन क्या होता है? तो दे हेल्प इन लोकोमोशन, दैट इज स्विमिंग. यहां पर लोकोमोशन क्या है? स्विमिंग हो रही है ना. तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? सबसे पहले नंबर ऑफ सीलियरी कॉम्ब प्लेट्स कितने हैं? 8. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज कॉम्ब प्लेट्स? द फंक्शन इज दे हेल्प इन स्विमिंग और लोकोमोशन. ये एनिमल है. एनिमल में दिस इज माउथ. अच्छा, माउथ जिस साइड पर प्रेजेंट है दैट साइड इज नोन एज ओरल साइड और ओरल सरफेस. हम इस पूरी सरफेस को क्या बोलेंगे? ओरल सरफेस. इसके ठीक अपोजिट वाली सरफेस, माउथ के ठीक अपोजिट वाली सरफेस जो है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाती है एब ओरल सरफेस. क्या यहां पर एनस प्रेजेंट है? नहीं है. क्यों? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है ना. ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान प्रेजेंट है तो उसमें एक ही ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग इज देयर, दैट इज माउथ. एनस इज एब्सेंट हियर. एनस नहीं है तो माउथ इज प्रेजेंट, एनस इज एब्सेंट. ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान. आप इसी पॉइंट से आगे आप तुरंत रिलेट कर सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम का. तो बता दो डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा होगा? कंप्लीट और इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट. व्हाई? बिकॉज ओनली वन ओपनिंग प्रेजेंट. सो माउथ के ठीक अपोजिट वाली सरफेस क्या कहलाएगी? एबोरल सरफेस. एबोरल सरफेस पर देयर इज अ सेंसरी स्ट्रक्चर. This sensory structure is known as statocyst. This statocyst help in balancing. ये किसमें हेल्प करता है? बैलेंसिंग में और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में. ये पानी में स्विमिंग कर रहे हैं, पानी का बहाव तेज आया, उसकी वजह से इनकी बॉडी का पोस्चर एक तरफ ही झुक गया, तो वापस सीधा करने में कौन सा सेंसरी स्ट्रक्चर हेल्प करेगा? दिस स्टेटोसिस्ट. एक तरफ झुक गई, वापस दोबारा से बैक टू द नॉर्मल पोजीशन. दीज एनिमल आर हैविंग टेंटाकल. इनमें क्या प्रेजेंट है? टेंटाकल्स. टेंटाकल के नंबर 2. टेंटाकल के नंबर 2. टेंटाकल जो होते हैं ये होते हैं सॉलिड. सॉलिड इसका मतलब इनके अंदर कोई हॉलो स्पेस कैविटी नहीं है, दे आर सॉलिड. जबकि हाइड्रा में हमने देखे थे कि वहां पर टेंटाकल के बीच में स्पेस था, वो कैसे थे? वो हॉलो थे, है ना. यहां पर टेंटाकल जो होते हैं दे आर सॉलिड. टेंटाकल यहां पर कैसे हैं? सॉलिड है. फंक्शन क्या होगा इन टेंटाकल का? दीस टेंटाकल हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ प्रे. ये टेंटाकल क्या करेंगे? प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं. निमेटोब्लास्ट. निमेटोब्लास्ट या नीडोसाइट ये कहां प्रेजेंट थी? तो ये प्रेजेंट थी फाइलम सीलेंट्रेटा में. यहां पर ये निमेटोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट एब्सेंट होती है.
नीडोब्लास्ट एब्सेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे इसको। नीडोब्लास्ट एब्सेंट है, हेंस कॉल्ड ए नाइडेरिया। इसीलिए इनका एक नाम और भी है, क्या? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दीज नेमेटोब्लास्ट और नीडोसाइट, हम इनको एक और नाम देते हैं, क्या? ए नाइडेरिया। जबकि फाइलम सीलेंट्रेटा में नीडोब्लास्ट प्रेजेंट थी, तो वहां क्या नाम दिया था? वहां नाम दिया था नाइडेरिया, है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट। यहां पर ये एब्सेंट है तो क्या नाम हो जाएगा? ए नाइडेरिया। उनके जगह पर, इन प्लेस ऑफ नेमेटोब्लास्ट, उनके जगह पर दूसरी टाइप की एक सेल प्रेजेंट है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट ऑन टेंटाकिल कॉल्ड लासो सेल, आल्सो कॉल्ड कोलोब्लास्ट। इन टेंटाकिल पर दूसरे टाइप की सेल प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं कोलोब्लास्ट या लासो सेल। ये कार्निवोरस होते हैं, टेंटाकिल्स 2 हैं, सॉलिड हैं, और वो किसमें हेल्प कर रहे हैं? कैप्चर ऑफ प्रे में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, डाइजेशन जो होगा, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड देन इंट्रा सेलुलर। याद करो, बिल्कुल ऐसा ही था फाइलम सीलेंट्रेटा में, फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर एंड देन इंट्रा सेलुलर। स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये एब्सेंट होते हैं। एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस से ही ये डिफ्यूज होंगी, ऑक्सीजन अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, है ना। जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है दैट इज अमोनिया, वो भी बॉडी से डिफ्यूज आउट होता जाता है। रिप्रोडक्शन बाय ओनली सेक्सुअल मींस, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनिमल्स जो होते हैं दे आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मीनिंग क्या है? कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मींस मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स अलग अलग नहीं होते। इन्हीं के लिए हम दूसरा टर्म भी यूज कर सकते हैं, बाइसेक्सुअल। हम एक और पॉइंट क्या यूज कर सकते हैं? बाइसेक्सुअल, इसे हम बाइसेक्सुअल ही बोल सकते हैं, बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट। एक और पॉइंट भी बोल सकते हैं मोनोसियस, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस, और सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ये भी एनसीईआरटी का पॉइंट है, एक्सटर्नल टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बॉडी इन वाटर, वाटर में है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट टाइप, इट मींस लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है लाइफ साइकिल में। लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, देन देयर इज फ्री लिविंग लार्वा, लार्वा का नेम है सीडीपिड लार्वा, सो देयर इज सीडीपिड लार्वा। लाइफ साइकिल में अगर लार्वल स्टेज प्रेजेंट है देन द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। Now come to the examples of Ctenophora. Examples, first example Ctenoplana, next one is Pleurobrachia, and next is Beroe. It is also called swimming eye of cat. ऐसा क्या बोलते हैं? क्योंकि ये चमकते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस है, तो ऐसा लगता है कि कैट की आई वहां पर वाटर में दिख रही है। Now हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है फाइलम सीलेंट्रेटा और Ctenophora, इनको रिकॉल करें कुछ पॉइंट से, तो आपको तुरंत उनका आंसर देना है, मैं पॉइंट बोलूंगा, आप उसका आंसर बोलते जाइए। जैसे मैंने बोला हैबिट एंड हैबिटेट, तो सबसे पहले सीलेंट्रेटा का हैबिट बता दीजिए। सीलेंट्रेटा के हैबिट में पॉइंट था दे आर मोस्टली मैराइन, फ्यू फ्रेश वाटर लाइक हाइड्रा। Ctenophora में अगर आप बोलेंगे यही बात तो आप बताइए एक्सक्लूसिवली मैराइन है, एक्सक्लूसिवली मैराइन होती है। फाइलम सीलेंट्रेटा के मेंबर जो हैं, इनके अगर हम हैबिटेट की बात करें कि ये मेंबर जो होते हैं दे आर सॉलिटरी, दे आर कॉलोनियल, सेसाइल, फ्री स्विमिंग। जबकि अगर हम Ctenophora को कंपेयर करेंगे तो Ctenophora में दे आर फ्री स्विमिंग, है ना। ये कैसे होते हैं? फ्री स्विमिंग होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब बताइए फाइलम सीलेंट्रेटा में कौन सा होगा? टिश्यू लेवल। तो बताइए Ctenophora में कौन सा होगा? अगेन टिश्यू लेवल। सिमेट्री, दोनों की सिमेट्री कैसी हो जाएगी? रेडियल सिमेट्री। जर्म लेयर, बोथ आर डिप्लोब्लास्टिक। बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान प्रेजेंट है। तो फिर आप इसी से मिलता जुलता पॉइंट आप कौन सा ले लोगे? डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अब बताओगे डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट टाइप। अच्छा, डाइजेशन, डाइजेशन किस टाइप का होगा? डाइजेशन इज फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर एंड देन इंट्रा सेलुलर। Respiration and excretion both takes place by simple diffusion through general body surface. कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर फाइलम सीलेंट्रेटा का आप बता दोगे कि वहां पर प्रेजेंट होती हैं नीडोसाइट्स। सीलेंट्रेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नीडोसाइट। फाइलम Ctenophora का कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो आप बता सकते हो 8 सीलियरी कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट हैं। 8 सीलियरी कॉम्ब प्लेट्स, क्या फंक्शन क्या होता है उनका? दे हेल्प इन लोकोमोशन, स्विमिंग। यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल, तो फाइलम सीलेंट्रेटा के मेंबर जो होते हैं ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और कुछ मेंबर बाइसेक्सुअल भी होते हैं। लेकिन अगर आप Ctenophora की बात करोगे तो Ctenophora में मेंबर कैसे होते हैं? आप याद करो, अभी बताया था हर्माफ्रोडाइट, है ना, बाइसेक्सुअल। तो आंसर क्या होगा? Ctenophora के लिए आंसर क्या हो जाएगा? बाइसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल और इंटरनल बोथ टाइप का हो सकता है इन केस ऑफ सीलेंट्रेटा, मींस कुछ मेंबर में इंटरनल और कुछ मेंबर में एक्सटर्नल। जबकि आप Ctenophora की बात करोगे तो Ctenophora में आपको याद रखना है, ये पॉइंट लिखा था वहां क्या? एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जो होता है सीलेंट्रेटा में डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का हो सकता है। लेकिन अगर बात करो Ctenophora की तो Ctenophora में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है ना, लार्वा प्रेजेंट है।
एग्जाम्पल्स, मैं आपसे नाम बोलूंगा, आप उनका दूसरा नेम बोलिए, है ना, जैसे कॉमन नेम या साइंटिफिक नेम, उनमें से कोई भी हो सकता है, आपको दूसरा नेम बोलना है। जैसे मैंने बोल दिया हाइड्रा, क्या जानते हैं इसके बारे में, फ्रेश वाटर है ना। फिर मैंने बोल दिया कि अब आप बता दो सी फैन, सी फैन का दूसरा नाम क्या है, गोर्गोनिया। मैंने पूछ लिया सी पेन, तो पेनाटुला। पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, फाइसीलिया, है ना। मैंने बोल दिया मिएंड्राइना, ब्रेन कोरल, है ना। अच्छा, और मैंने बोल दिया सी फर, ओबेलिया। जेलीफिश, ऑरिलिया, है ना। एडेंशिया, सी एनिमॉन। टिनोफोरा का एग्जांपल ले लीजिए, कौन सा, प्लूरोब्रेकिया, है ना। और कौन सा ले सकते हैं, चिनोप्लेना। तो ये तो क्या था, दोनों का कंपैरेटिव स्टडी। अब बात करते हैं बिगिनर बॉक्स। बिगिनर बॉक्स का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा इज सीलेंटेड। हाइड्रा सीलेंटेड है, क्यों सीलेंटेड है, इनमें से आपको फीचर ढूंढना है। इसमें टेंटाकल्स हैं, इस वजह से है, मीजोग्लिया है, इस वजह से है, या उसमें सीलेंट्रॉन कैविटी और नीडोब्लास्ट प्रेजेंट है, इस वजह से है। सो आंसर विल बी सीलेंट्रॉन एंड नीडोब्लास्ट। हाइपोस्टोम नहीं, सीलेंट्रॉन एंड नीडोब्लास्ट। पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर इज सोल्जर ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, पोर्तुगीज सोल्जर, अ स्पॉन्ज और अ पॉलीमॉर्फिक कॉलोनियल सीलेंट्रेट। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था फाइसीलिया जो होता है पॉलीमॉर्फिक है, बहुत सारे फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, कॉलोनियल है, वो सारी फॉर्म्स साथ साथ भी हैं। आंसर विल बी पॉलीमॉर्फिक कॉलोनियल सीलेंट्रेट। Which of the following is a coelenterates? सी काउ मैमल है, सी कोकुम्बर इकाइनोडर्मेट है, सी फैन याद कीजिए गॉर्गोनिया, सी फैन है ना, सीलेंट्रेटा। सी हॉर्स ये क्या है, एक फिश है। द फंक्शन ऑफ निमेटोब्लास्ट इन सीलेंट्रेट, एक्सक्रीशन, ऑफेंस एंड डिफेंस, रिप्रोडक्शन और रेस्पिरेशन। बोलिए क्या आंसर होना चाहिए, ऑफेंस एंड डिफेंस। कोरल्स बिलोंग टू द फाइलम पॉलीफेरा, सीलेंट्रेटा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। आप याद कीजिए, सीलेंट्रेटा में एक लाइन बोली गई थी, सम मेंबर्स ऑफ सीलेंट्रेट सीक्रेट एक्सोस्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कॉल्ड कोरल्स। तो वो क्या होंगे, सीलेंट्रेट्स हैं। सेसाइल फॉर्म ऑफ ओवेलिया, ओवेलिया की सेसाइल फॉर्म, ओवेलिया में दो फॉर्म है, एक फॉर्म है पॉलिप, दूसरी फॉर्म है मेड्यूसा। अब आप बता दो कौन सी फॉर्म सेसाइल है, पॉलिप सेसाइल है या मेड्यूसा सेसाइल है। देन आंसर इज पॉलिप इज सेसाइल फॉर्म, है ना। सो पॉलिप ऑफ ओवेलिया, मेड्यूसा ऑफ ओवेलिया, बोथ फॉर्म या नन ऑफ देम, है ना। सेसाइल फॉर्म क्या हो जाएगी, पॉलिप। और अगर पूछ रहे थे फ्री स्विमिंग फॉर्म कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाता, मेड्यूसा। रेडियली सिमेट्रिकल और डिप्लोब्लास्टिक, उसमें सिमेट्री कौन सी होनी चाहिए, रेडियल सिमेट्री, और वो एनिमल कौन सा हो, डिप्लोब्लास्टिक। राउंड वर्म है क्या, नहीं, ये बिलोंग करते हैं, आगे फाइलम आएगा एस्के हेलमिंथीस। अर्थवर्म एनिलिडा, लीवर फ्लूक ये मिलेगा प्लेटी हेलमिंथीस। हाइड्रा, हाइड्रा डिप्लोब्लास्टिक है और हाइड्रा में सिमेट्री भी रेडियल सिमेट्री होती है। कॉम जेली या सी वॉलनट बिलोंग टू द फाइलम, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कॉम जेली सीलेंट्रेटा को बिलोंग करती है, या टिनोफोरा को, मोलस्का को, या इकाइनोडर्मेटा को। देन आंसर इज टिनोफोरा, कॉम जेली, है ना। सी वॉलनट, सी गूसबेरी ये मिला था। The characteristic feature of Ctenophora is, Ctenophora का characteristic feature, presence of 8 comb plates for locomotion। याद कीजिए 8 सीलरी comb plates मैंने बोला था। मेराइन है, पिलाजिक है, बायोल्यूमिनेसेंस है, ये भी फीचर है। प्रेजेंस ऑफ कोलोब्लास्ट और लासोसेल, ये भी पॉइंट बताया था, ऑन द टेंटाकल्स फॉर कैप्चरिंग फूड। अच्छा, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारी बातें सही हैं, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव।